Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In last video lecture we have seen operations performed on a dependent variable. Today we are going to discuss about operations performed on independent variable. After that we will solve one problem based on it, and also I will share some short trick method with you. So let's start with the first type of operation, that is time shifting. Here let us consider x of t is the original signal, and a signal x of t is said to be shifted in time if we replace the t by t minus t. Thus x of t minus t represents the time shifted version of x of t, and the amount of time shift is t seconds. Here the value of t may be positive or negative. If the value of t is positive, then it is called as the delayed version of the given signal, and we have to shift the sample values to the right side. And if the value of t is negative, then this is called as the advanced version of the given signal, and here the values are shifted to the left hand side. If we take one example, that is x of t minus 3. Here x of t is the original signal and the value of t is positive, that is positive plus 3. So here the signal is delayed by 3 position to the right hand side. After that, the same procedure is applicable for x of n, that is a discrete signal also. Here x of n is the original signal and x of n minus capital N is the shifted version of x of n. The value of n may be positive or negative. If the value of n is positive, then it is delayed version, that is samples are shifted to the right hand side, and if the value of n is negative, then it is advanced version of signal and the values are shifted to the left hand side. Example, x of n plus 2. Here x of n is the original signal and the value of t is equal to minus 2. If you put that value minus 2 in equation this first, then here x of n minus of 2 becomes n plus 2. So here the x of n is advanced by 2 positions, and the samples are shifted to the left hand side. After that, second type of operation is time scaling. If x of t is the original signal, then x of at is the time scaled version, where a is a constant value. Depending on the value of a, we can either have a signal compression or signal expansion. If the value of a is greater than 1, then the signal compression will take place, and if the value of a is less than 1, then the signal expansion can be takes place. And friend, there is a difference between time scaling and amplitude scaling. In a time scaling, scaling can be done on x-axis, and in amplitude scaling, scaling can be done on y-axis. So let's take one example for a signal expansion and compression. In first case, the value of a is greater than 1, because here we have to perform operation x of 2t, and the value of 2 is greater than 1, so that's why the signal compression will takes place. अभी यहाँ पे आपको चेक करना है x लिमिट, x का जो यहाँ पे एक्सिस है, वहाँ पे जो स्केल दिया है उसको आप चेक करेंगे पहले. तो ये दिया है आपको -2 से लेके +2 तक. जो सिग्नल कंप्रेशन होगा ऑपरेशन, उसमें जो आपके स्केल दिया था t का टाइम पीरियड का, वो यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा. ये -1 से लेके तो +1 तक आपको मिलता है यहाँ पे. तो जब हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे x ऑफ 2t, तो जो भी आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे हम उसको जस्ट डिवाइड करेंगे, दैट इज -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2. सो -2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू -1 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1. तो जो नया सिग्नल का हमें स्केल मिलेगा यहाँ पे, वो रहेगा -1 से लेके तो +1 तक. तो यहाँ पे आपका जो सिग्नल है वो कंप्रेस फॉर्म में हमको यहाँ पे मिलेगा. सेकेंड केस है फॉर सिग्नल एक्सपांशन. सिग्नल एक्सपांशन के लिए फिर से आपको एक यहाँ पे एक दिया है सिग्नल गिवन x ऑफ t, और जो आपका सिग्नल के यहाँ पे वैल्यूज़ होंगे, स्केल होगा, वो यहाँ पे एक्सपांड होना चाहिए.
तो यहाँ पे जो स्केल था आपका -2 लेके सो +2 तक, तो ये एक्सपांड होगा यहाँ पे, दैट इज़ फ्रॉम -4 से लेके तो +4 तक। तो ये कैसा होगा हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे आपको a का वैल्यू दिया है 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 एंड 0.5 इज लेस देन 1। सो द सिग्नल एक्सपांशन विल टेक्स प्लेस हियर। एंड जो अभी आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आपको दिया है टर्म वो है 2 दिया है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट है टाइम का वैल्यू, उसे हम मल्टीप्लाइड करेंगे बाई 2 डिनोमिनेटर वैल्यू, दैट इज़ -2 into 2 which is equal to -4 and here 2 into 2 which is equal to 4। तो आपका जो नया स्केल आपको यहाँ पे मिलेगा वो रहेगा फ्रॉम -4 से लेके तो +4। तो ये आपका यहाँ पे स्केल प्रेजेंट है -4 से लेके तो +4। एंड ये जो आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ये यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे भी 2 एम्पलीट्यूड है, ये भी सेम रहेगा। तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग में हम एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम स्केलिंग में हम जो टाइम पैरामीटर यहाँ पे आपको दिया है स्केल, उसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे। उसके बाद थर्ड टाइप का ऑपरेशन है हमारे पास टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। सिग्नल इज सेड टू बी फोल्डेड वर्जन ऑफ अ गिवन सिग्नल इफ इट सेटिस्फाइड x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ -t। तो जो हमें गिवन सिग्नल दिया है उसका कंप्लीट ये मिरर इमेज रहेगा। यहाँ पे जो x ऑफ t सिग्नल है प्रेजेंट है, ये पूरा इसका x ऑफ -t आपका जो रहेगा वो पूरा उसका मिरर इमेज रहेगा, जिसे हम फोल्डिंग वर्जन भी बोल सकते हैं। उसके बाद अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है गाइस, जिससे आपको जो भी हमने अभी तक के ऑपरेशंस पढ़े हैं वो आपको क्लियरली समझ में आएंगे कि वो कैसे ड्रॉ करने हैं। तो जो पहला है क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, फॉर द सिग्नल डिफाइंड एज x ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर -1 इज लेस देन और इक्वल टू t इज लेस देन और इक्वल टू 1 अदरवाइज 0, sketch the following x of 2t, x of -2 plus t, x of t plus 1, x of t plus 1 into u of t and x of t into del of t। तो उसमें हम अभी हम यहाँ पे पहले स्केच करेंगे पहला पैरामीटर, दैट इज़ x ऑफ 2t। तो यहाँ पे एक गिवन सिग्नल आपको दिया है ऑलरेडी x ऑफ t। तो पहले हम देखेंगे उसको ड्रॉ कैसे करना है। तो यहाँ पे दिया है आपको -1 से लेके तो 1 तक जो आपका एम्पलीट्यूड है वो 1 रहेगा। तो वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, -1 से लेके तो 1 तक आपका एम्पलीट्यूड 1। ये मैंने जो आपको गिवन कंडीशन दिया था वहाँ से मैंने उसको ड्रॉ किया है। एंड अदरवाइज यहाँ पे 0 दिया है, मतलब -1 से लेके तो 1 तक आपका सिग्नल प्रेजेंट रहेगा और बाकी के जो वैल्यूज़ है -2 -3 -4 अप टू इन्फिनिटी एंड अगेन फ्रॉम 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी इट विल बी 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है x ऑफ 2t, मतलब जो t सिग्नल है उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 किया है। तो उसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इजी है। तो जब भी आपको जो t का जो पैरामीटर होता है वहाँ पे प्लस बोला होगा तो हम वहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस बोला होगा तो हम प्लस करेंगे, अगर इसे मल्टीप्लाई करने को बोला है तो हम उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड के टर्म में प्रेजेंट होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे वर्क होता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया है कि जो 2 पैरामीटर है, यहाँ पे 2 जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड हुआ है t के साथ। तो मल्टीप्लाई होगा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कहाँ पे करेंगे हम उसको, जो हमारा स्केल दिया है t जो हमारे प्रेजेंट रहता है ऑन x एक्सिस, वहीं पे हम उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका स्केल स्टार्ट होता है वो होता है फ्रॉम -1 से लेके तो +1 तक और हम उसको डिवाइड करेंगे बाई 2 से। तो ये आएगा -0.5 टू +0.5। तो ये स्केल अभी हमको मिल गया है और वही स्केल आपको ये जो गिवन डायग्राम दिया था वो स्केल पे आपको वही डायग्राम अभी ड्रॉ करना है। सेकंड देखते हैं और समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे दिया है सेकंड x ऑफ -2 प्लस t। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दिस x ऑफ -2 प्लस t सिग्नल कैन बी राइट एज अ x ऑफ t -2 ऑल्सो। इसको ये सिग्नल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x ऑफ t सिग्नल फिर से आपका गिवन है और यहाँ पे x ऑफ t -2 आपको स्केच करना है।
तो जैसे अभी मैंने बोला -2 है यहाँ पे दिया, तो हम ऑपरेशन उसका उल्टा परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ +2। तो जो वैल्यूज़ आपके शिफ्ट होंगे वो प्लस को शिफ्ट होने चाहिए। तो ये जो सिग्नल है आपका, ये जो शिफ्ट होगा वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है। तो लिमिट्स हम देखेंगे हियर। यहाँ पे जो सिग्नल का लिमिट स्टार्ट हुआ था फ्रॉम -1, तो -1 और कहाँ कितना शिफ्ट करना है आपको, बाय 2 सैम्पल से। तो -1 + 2 1 आएगा, 1 + 2 3 आएगा। तो जो नए लिमिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो नया स्केल मिलेगा वो रहेगा 2 - 1 1 एंड 2 + 1 3, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 3। तो ये शिफ्ट हो जाएगा सिग्नल आपका फ्रॉम 1 to 3 एंड एम्पलीट्यूड इसका सेम रहेगा। उसके बाद है थर्ड टाइप का सिग्नल जो हमें ड्रॉ करना है, x(t+1). x(t) अगेन गिवन सिग्नल है, +1 है, इसका मतलब जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, वो हम यहाँ पे -1 लेंगे, जो टाइम वैल्यू प्रेजेंट है उसका। तो यहाँ पे प्रेजेंट है -1 और यहाँ पे आपको शिफ्ट करना था सिग्नल बाय 1 सैम्पल से। सो -1 - 2 आएगा, 1 - 1 0 आएगा। तो ये नया स्केल आपको यहाँ पे मिल गया फ्रॉम -2 से 0 तक। तो ये -2 से लेके 0 तक आपका सिग्नल ड्रॉ हो जाएगा। ये सिग्नल एज इट इज़ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन x(t+1), दैट मीन्स द सिग्नल इज शिफ्टेड बाय 1 सैम्पल टू द लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नल है, हमको ड्रॉ करना है यहाँ पे, वो है x(t+1) into u(t). तो x(t+1) हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया है, वही हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद u(t) सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। तो u(t) आपका यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, जो 0 से लेके तो इन्फिनाइट तक जाता है, यहाँ पे आगे जाएगा ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी। और उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये सिग्नल प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कुछ भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो ये 0 रहेंगे। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, ये आएगा आपका 0। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल है आपका, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ नहीं आएंगे। यहाँ पे फिर देखेंगे हम राइट हैंड साइड में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका पूरा 0 है और यहाँ पे 1 है। सो अगेन 0 × 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में आपके कुछ भी सिग्नल प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। सिर्फ यहाँ पे ओरिजिन पे वैल्यू प्रेजेंट है, बिकॉज हियर ऑन दिस 0 ओरिजिन द एम्पलीट्यूड इज़ 1 एंड हियर अगेन द एम्पलीट्यूड इज़ 1। सो 1 × 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 आएगा सिर्फ। Last signal is x(t) into del(t). Here x(t) is given signal and del(t) is a delta or unit impulse function which is present only at t is equal to 0. So after multiplying x(t) into del(t) signal, we will get this signal as it is, as that of x(t) signal. तो आई होप गाइज आज का जो हमारा सेशन था आपको पसंद आया होगा। और जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो है वो है मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल कोट है आपके लिए, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो बहुत ही लाइफ में आगे बढ़िए, मोटिवेट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू सो मच।